This conference Yes. will now be recorded. That's good. और जो के अलावा कोई मेरे को टेस्ट के नंबर भी नहीं भेजता, हालांकि मुझे पता लग जाता है, बट फिर भी अगर आपसे पता लगे तो अच्छा हो। चलो बेटा, so you remember we started with electron displacement, or you simply call it effects in organic chemistry. There are 4 effects: inductive, the electromagnetic, the hyperconjugation, and resonance. Inductive is a permanent effect. It is a 2 type, plus I अगर electron releasing group, minus I अगर electron withdrawing. You are not supposed to see the charge on the molecule. You are supposed to see that whether electron releasing group is there or electron withdrawing group is there. Electron releasing और electron withdrawing आपको कोई लिस्ट दी गई थी। याद रखने की बात, inductive effect is observed only up to 3 carbon atoms. ये तो हमेशा वैलिड ही रहेगा. The neutral, most stable, positive or negative unstable, positive and negative both will be most unstable. Electromagnetic effect, second effect, takes place at the demand of the attacking reagent. It's a temporary effect. It is a 2 type, plus E when electrophile and minus E when the nucleophile attack. This could explain the mechanism of the reaction. What is mechanism? Step-by-step description of the reaction. For example, you have done that during addition of species like A plus B negative on unsymmetrical alkene, the negative part goes to the carbon atom which has lesser number of hydrogen atom. We started with one more important effect known as resonance or mesomerism. Resonance is due to movement of pi electron. लॉक किया जाए, sigma electron does not participate. क्योंकि pi electron weakly held होते हैं, तो जिसकी वजह से पिपट सर resonance is going to be strongest होगा. जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इक्वालिटी लाएगा, इक्वालिटी से हमेशा स्टेबलाइजिंग होता है. The more the resonating structure, the greater is going to be stability. Conjugation होगी, resonance होगी. Conjugation इन 5 situations में तुम्हें करवाई गई थी. बताया गया था कि अगर pi double bond single bond positive charge हो, then move pi electron toward the positive charge. In this way, the positive charge is going to decrease, equality will come. Move negative charge towards a pi bond. इस तरीके से the negative charge is going to decrease, stability आएगी. Move pi bond towards pi bond. So either way you can just move it. So you will be getting positive here, you will be getting the negative here, but in any case stability आएगी. The more the stability, the more is going to be tendency उस चीज की फॉर्म होने की. बेशक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट अगर वो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है तो कदम व्हाट यूज्ड टू हैपन, द इलेक्ट्रॉन पेयर विल ट्रेवल टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड. ऐसा करने से उल्टा बिहेवियर आया क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, जो कि हम अगर इंडक्टिव को देखते तो वो नेगेटिव होना चाहिए. अब इसकी वजह से इस पर्टिकुलर केस को प्लस ई गलती हो गई, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट भी बोला जाएगा. You were supposed to complete the homework. I hope you people have done it. आपने देखा होगा रेजोनेंस सिर्फ कहाँ पे आती थी चुक, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगी, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे. काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बच्चों, तो this was homework given to you. तो here you will be having the negative charge. कोई बोला नहीं, क्या हो गया भाई? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर दोबारा इस तरफ मूव करेगा बच्चों, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दिस और ये. उधार चुकाओ, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ गया. बट अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड मूव कर गया, मतलब उसने इन 7 बॉन्ड्स को, कार्बन हैलोजन को भी, कार्बन कार्बन 6 बॉन्ड्स को भी बराबर कर दिया. दैट इज रेजोनेंस, इक्वालिटी लेके आया.
move odd electron towards a pi bond. That's the same thing. You will be having now unpaired here and you will be having the paired here. That was discussed in the last class. That was a summary. Move pi towards positive, move negative towards pi bond toward pi, lone pair towards pi bond, or electron towards pi bond. Right, Ji? So till that we discussed in the last class. So that was a recap. Let's move ahead. So we are moving ahead, whatever we stopped. Dienes जो नहीं है दो इन होंगे, इट मे बी मल्टीपल ऑफ डबल बॉन्ड, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज गोइंग टू बी डन इन द डाइन्स की कैटेगरी में हो जाएगी. कॉन्जुगेटेड, तो ले कॉन्जुगेटेड को अल्टरनेटेड भी बोल सकता है. व्हाट इज अल्टरनेटेड? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से वो आएगा. ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. आपके पास बेटे वो 10 भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी अल्टरनेटेड. आइसोलेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल 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 डबल, कोई पैटर्न ना होना. क्यूमुलेटेड, डबल बॉन्ड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाना, तो दैट इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटेड. जरूरी नहीं है ये मॉलिक्यूल हो, it could be anything. CH, C, this is C, H, the CH. This is also going to be cumulated molecule. इस particular को एलीन बोला जाता है, इस particular केस को एलीन. तो अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, अग्रिम is a hybridization state for each carbon in एलीन, sp2, sp and sp2. Do you understand? sp, 2p and the sp2. I hope you understand. अगर आप अपने रेजोनेंस वाला फंडा लगाएं तो आप देखते हैं कि इनमें से किसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है? द डाइन्स में, द कॉन्जुगेटेड वाली में. सो कॉन्जुगेटेड वाली ड्यू टू रेजोनेंस आर फाउंड टू बी मोस्ट स्टेबल, whereas the cumulated ions are found to be least stable because of aggregation of pi electron density. अनुवंश कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल बताया जा रहा है? कॉन्जुगेटेड. सबसे कम स्टेबल द क्यूमुलेटेड. अगर मैं इस तरफ स्टेबिलिटी को बढ़ता हुआ दिखाता हूं तो आप कह सकते हैं द क्यूमुलेटेड, उसके बाद बच्चों द आइसोलेटेड, और बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. ये इतने स्टेबल हैं कि हम इनके नाम के आगे 1-3 भी नहीं लगाते हैं, हम इसको डाइन बोल देते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड because of the obvious reason they are going to be very much stabilized, right sir? चलो जी, so that is अगला टॉपिक आता है. इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. हमने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अब ये टॉपिक हम करने वाले हैं. तो इसके लिए देयर आर गोइंग टू बी वेरियस वे. Everybody should move in only the way which is being taught to you, that way only. तो आपने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ABCD, which of the following is going to be more stable, most stable, arrange in increasing order of stability, arrange in decreasing order of stability. First, the more the covalent bond, the more is the stability of resonating structure, because bond formation decreases energy. और गायकी वैसे ही दिमाग में रखना कि जब भी हमारे पास रेजोनेंस होती है सिग्मा बॉन्ड तो बनता ना टूटता है. कोवेलेंट का मतलब आप कोवेलेंट को सिग्मा को काउंट मत करिए, आप सिर्फ किसको काउंट करिए? पाई को काउंट करिए. एग्जांपल, आपके पास स्ट्रक्चर 1 है ब्यूटाडाइन का,
आपके पास स्ट्रक्चर 2 है बेटे, ब्यूटाडाइन, समझ पा Yes, रहे हैं? sir. तो अगर कोई पूछे ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अगर आप देखें इसमें 2 पाई बॉन्ड है, अगर आप देखें इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? द पहले The वाला। one which has 2 pi bonds. सो अगर आप चाहें ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना, देखो वैसे तो आइडियली ये भी बना सकते थे क्योंकि ना ये है ना वो है, बट अब आप देखेंगे कि ज्यादातर हम ये वाला स्ट्रक्चर क्यों लेके चलते हैं। आप देखिए ना ब्यूटाडाइन में हम कौन सा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, अभी और कारण भी होंगे, बट आप इसी सीक्वेंस में रहिए। आप देखिए राइट हैंड साइड जो सेकंड वाला है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो है। पॉजिटिव और नेगेटिव इज नथिंग बट शॉर्ट साइन ऑफ व्हाट? द स्टेबल, अनस्टेबल। अनुवंश, तुमने एक बात सीखी, अब एक बात बताइए बेटा, एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट, नो इशू। डू यू पीपल एग्री the stability order of carbocations which has been taught to you beta party? Yes, sir. Reason क्या है? The plus I effect. Very good. तो plus I effect की वजह से this is going to be most what? Stable. Stable. Most stable. Very good. आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा। आपने प्लस आई बोला, नॉर्मली बच्चे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट बोल जाते हैं, प्लस आई बोलने से आप ज्यादा प्रिसाइज बोले। अब बेटे तेरे को एक चीज सिखाने लेके जा रहा हूँ, ठीक है? एक चीज सीखने जा रहे हैं आप, देखते हैं क्या चीज है वो। पहला क्या था? मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबिलिटी। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, कंप्लीट ऑक्टेट, मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल the same thing is drawn here, the same thing I'm drawing once again due to the obvious reasons समझाने के लिए, ठीक है जी? तो एग्जामिनर ऊपर के रास्ते से पूछेगा, आई एम अ ट्रेनर, तो मैं नीचे वाले रास्ते से आपको समझा रहा हूँ, बट एग्जामिनर ये वाला रास्ता नहीं लेगा, तुम्हें सीखना होगा। सो एक मिनट मुझे बनाने दीजिए, अभी बात करता हूँ आपसे। तो ये और ये बेटे ऐसा आ गया, ठीक है जी? चलिए, तो देखिए दिस इज हैविंग द लॉन पेयर, इसके बगल में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तुम्हें पता ना इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। तो ये तो एक ही बात है, तुम्हारे एक घर में 3 कमरे आ गए, एक कमरे में, घर में एक कमरे में 3 लोग बैठे हुए हैं और दूसरा कमरा खाली है, तो आप कहते हैं जी इसमें से एक लोग उठ के परले में चल जाए। सो एम्प्टी होने की वजह से इसमें बच्चे रेजोनेंस लगेगी, इसको मैं कॉन्जुगेशन नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं रेजोनेंस सिंपल बोल रहा हूँ। तो जब ये इसमें जाएगा तो बच्चे आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। Yes, sir. बट ऐसा करने से इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है? Positive. 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 दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2। नीचे वाले स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। अब देखिए गायकी अनुवंश, इसके बेटे Yes. 2 4 6 2 8, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। एक हाइफन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले देख लीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। क्या ये समझ आया तुल्ली मैंने क्या किया? Yes, तुल्ली, sir. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है गुड़िया? 8। 8. इसके पास 8. कितने हैं? 6. इसके पास कितने हैं? 6। 6. इसके पास कितने हैं? 8। 8. इसके पास कितने हैं? 8। 8. इसके पास कितने हैं? 8. तो अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर को मोर स्टेबल क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है बोलूं, क्या तुम समझ आओगे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। एक और केस देखो, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो यहाँ पे ये आ गया। अब तुम स्मार्ट हो, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8। इसके पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन।
इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन? तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में से विच इज मोर स्टेबल? Structure 2. Structure 2. बोला is going to be more stable. Agreed? So हम अब कुछ एडिशन मारते हैं। अनुवंश, कल को मैं था नहीं और तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अनुवंश वो पूछता है कि बताइए इन दोनों में से ए एंड बी में से कौन सा स्टेबल है? तो बेटे आप कहेंगे दिस हैज प्लस आई इफेक्ट। अरे तुम्हें बताया बच्चों ने, एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू Resonance. वेरी गुड, ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका मतलब किसका पॉजिटिव चार्ज भूख उसकी ज्यादा कम होगी, ए में कि बी में? Resonance. So B में. Resonance. So this is going to be in comparison more or less stable. Do you people understand बच्चों? क्या Yes, आगे sir. जा सकते? Yes, sir. So this is the intelligence. सुनो, ये क्वेश्चन आएगा ना, मुझे पता है ना आपको पता है ना एग्जामिनर को पता है, वो तो क्वेश्चन बनाएगा, वो आप में से बेस्ट लोगों को चुनेगा। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। जैसे तुमने चलना सीखा था, हो सकता है तुमने कल को जब चलना सीखा था घर में सीखा था, बट क्या अब तुम सिर्फ घर में चलते हो, तुम पहाड़ भी चढ़ते हो? सो दैट इज समथिंग लाइक दिस। हम आपको ये बस एक वे ऑफ लाइफ दिखा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना सिखा रहे हैं। तो समरी बनाएंगे गुड़िया बाद में जाके, अभी तुली आगे चलते हैं बेटा। सो तुली जितना रिवीजन करता है उतना बेटर होता। अनुवंश कुछ पूछा? सर उसकी रेजोनेंस कैसे होगी सर? इसकी रेजोनेंस फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ना तो निकाल सकता बेटा, ना तो डाल सकता है। इधर किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल रहेगी, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही तो रहेगी। ये किसने बोला कि तुम इसको, तो वो कार्बन पे आ गया, वो ऑक्सीजन पे आ गया। नॉट अ गुड क्वेश्चन। मुझे नहीं समझ आया तुमने क्या पूछा और क्या एक पूछा। इधर देख, मोर अनुवंश, मोर आई बॉन्ड्स, हाउ इट है? मोर स्टेबिलिटी। More stability. सेकंड क्या बोला? वेरी गुड, मैं भूल गया सेकंड पॉइंट, अभी आपने देखा Complete octet. Octet. वेरी गुड वेरी गुड। तो आदित्य, कंप्लीट ऑक्टेट, Octet. More stable. More ठीक है। तो अभी काम आने वाला है, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो जैसे जैसे ये जाएगा तो ये हमें आगे चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, सीएस क्या होल्ड करता है बच्चों? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब बेटा एक बार दोबारा पढ़ के गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। Positive and negative. बोथ। Both. अब ये पहले वाला स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर तो तुमने बनाया हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रेजोनेंस भी तुम्हें सिखा दिया गया था, है ना? इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो अगर आप स्ट्रक्चर 1 को देखें और स्ट्रक्चर 2 को देखें, स्ट्रक्चर 1 में नो चार्ज सेपरेशन और स्ट्रक्चर 2 में हाँ बेटे चार्ज Charge सेपरेशन। separation. तो किड़े वाला स्टेबल और किड़े वाला अनस्टेबल होएगा, समझ सकते हो? Yes, sir. Yep. Charge separation is an unwanted situation. Unless and until मैं फंस जाऊं, मैं उसको नहीं पसंद चाहूंगा। अब अपनी जिंदगी और मेरी जिंदगी में आओ, ठीक है? अब आपको बताऊंगा, अगर किसी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दोनों या तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में all have charge separation, then which is going to be more stable? एक इमेजिन करना, मुझे देख पा रहे हो, मेरे हाथों में डंबल है, राइट? मुझे डंबल को दूर लेके जाना है, फ्री में तो जाएगा नहीं, एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। और बच्चों एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। Yes, sir. तो अगर तुम दूर लेके जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी का खर्चा क्या होगा? ज्यादा होगा।
जितनी एनर्जी का ज्यादा खर्चा होगा उतना क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ए और बी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से आपको समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर अवे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से 5 सेंटीमीटर अवे, राइट। तो 1 सेंटीमीटर अवे, this is more stable, this is going to be less stable. Less stable. आंखें बंद करो, लॉक करो। जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर लेके जाओ, फ्री में तो होगा नहीं क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूर लेके जाने में क्या होगा, एनर्जी का खर्चा होगा, एनर्जी का खर्चा होगा। सर हाँ जी, सर हम जैसे जितना दूर लेके जाएंगे हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा दूर वाला स्टेबल नहीं होना चाहिए? जब तो एनर्जी दे रहा है तो अनस्टेबल नहीं होगी यार। तो एनर्जी कम होने से नहीं होता, जितनी एनर्जी लो होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो एनर्जी दे के गैस के सिलेंडर को ऊपर पहुंचा रहे हो तो वो अनस्टेबल होगा कि बेटा स्टेबल होगा? Unstable. समझा बेटा? यस सर। जितनी भी एनर्जी देगा बेटे वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। समझ आएगा? यस सर। मोर एनर्जी मोर अनस्टेबल। तो अगर ये एक्सिस है उत्कर्ष, एक मॉलिक्यूल इधर बैठा है एक इधर बैठा, कौन सा वाला अनस्टेबल है? जो ऊपर वाला। तो जितनी एनर्जी देगा पिपेट उतना अनस्टेबल है। पिपेट लॉक कर दे इसको बच्चे। यस सर। तो पिपेट, अमोदनी और ये जरा बोर्ड पे देखो, तुली आप भी कोई स्ट्रक्चर बनाने वाला, ठीक है बेटा। आप लोगों को फंडामेंटल्स पहले करवाए गए हैं, आप सिर्फ उसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक डॉली? अब बेटे आपको पता है ना, रेजोनेंस में कोई बॉन्ड मूव सिग्मा नहीं करने का, तो पहले स्केलेटन बना लिया करो, ठीक? इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन्स, समझा? इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। ओ भाई लोग, क्या सिखाया गया था? सोचो, मूव डैश टुवर्ड डैश, क्या बोल रहा हूँ? पहला डैश क्या है? Move negative charge toward pi 1. नेगेटिव कहाँ दिख रहा है मेरे अंकल? Sir, lone pair toward pi 1. दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। Move lone pair toward pi 1. बिल्कुल सर, दोबारा क्यों बुलाया तेरे को पता है? इधर आएगा राजा, है Yes ना? sir. जब ये इधर आएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? Positive. Positive. और इसको आगे धक्का दे दे, इसको क्या कर दे, इधर जो आया इसको आगे दे दे यार, तो इसके ऊपर क्या आ गया? Negative. Negative. फिर क्या आ गया? पॉजिटिव। Yes sir. अभी एक सेकंड बेटे, अभी इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आ गए? Yes sir. Yes, sir. चल भाई पिवट, मूव नेगेटिव चार्ज, ये अनुवंश को पहले वो ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसने पहले ही बोल दिया था। अनुवंश, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स दिस, Pi 1. तो इधर तो मैंने पहले ही नहीं बनाया, इधर डबल बॉन्ड आ गया दोस्त, Yes sir. और इस Negative क्या sir. चार्ज आ गया भैया? नेगेटिव आ गया। Negative. Less तीनों stable. रेजोनेट समझ आ गए? अब आपसे क्वेश्चन आएगा, रेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और पिपेट ऐसा भी पूछ सकता था, रेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, समझे? Sir, 3 to 1. अभी चुप, एक एक करके बोल यार, जल्दी क्या है? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? Sir, 1. वेरी गुड, जल्दी क्या है ना, बिकॉज No charge separation. नो Yes. चार्ज, बिल्कुल ठीक बोला। Hmm. अब ये बात पक्की है, 2 और 3 का नंबर लगेगा, है ना? 2 और 3 का नंबर लगेगा, तो 2 और 3 में ये चार्ज नजदीक है और ये चार्ज दूर है ना? ये देखो नजदीक है,
These are closer. 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 These are farther. Farther. तो पिपेट किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? 3, 2 और 1. 2. वो मैंने एक उसमें लिख दिया बिकॉज इसमें क्या था? चार्ज सेपरेशन फार अपार्ट. Farther. यू राइट. इसमें चार्ज सेपरेशन Closer. 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 डू यू अंडरस्टैंड? रेपिटेशन यहाँ पे एक बॉन्ड मिस है, उसको मैंने पूरा कर दिया है. अब हो गया. If comparison between two molecules having charge separation is needed, then choose that molecule where distance between positive and negative charge is बच्चों lesser. Lesser. For example, वही केस जो पिछले पेज पे बना है. 1, 2, 3. You know it. How did I do that? 1 is going to be more stable, right? 2 और 3 में से 2 is going to be more stable because these are going to be closer. जितना रिपीट करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस Charge are closer to each other. क्लोजर. जितना लिखोगे यही तरीका है याद करने का. यहाँ पे चार्ज सेपरेशन फादर. यप. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. कोई Yes. प्रॉब्लम? राइट. ठीक है जी. तो ये आपकी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. जिससे मैं बोलूंगा वो बात करेगा. ठीक है जी. ऐसा नहीं है कि किसी का चुप करा रहा हूं ताकि हम स्लो बात करें, डिस्कशन करें, ऑब्जर्व. तो चल भी गए कि आगे आ जा. Yes, sir. ठीक है. चाय का वो रखा. अगर गलती की तो मैं आ रहा हूँ. तो गए कि ये नाम क्या है मॉलिक्यूल का? नोबडी एल्स? Ethanoic. हाँ ठीक बोला. बिल्कुल ठीक बोला. शाबाश शाबाश. बिल्कुल ठीक बोला. Ethanoic. इथेनोइक एसिड. मैंने बोला था सिरके में डालता है एसिटिक एसिड. समझ गया? Yes, sir. आराम से चल बेटे. तभी मैंने रुकवाया है ना. इसके ऊपर एक 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है. तो ये जनाब अपनी ओर खींच रहा है. लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस का जन्म हो रहा है. Yes, sir. मूव लॉन पेयर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड. Double bond. ये इलेक्ट्रॉन इधर गया. समझ पा रहा है इशारे को? Yes, sir. इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट. तो डॉली यहाँ पे तेरा क्या आ गया? पॉजिटिव. Double तो सब bond or पॉजिटिव. बिल्कुल से. यही गुड़िया तेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया. yes, sir. इसके ऊपर एक तो डबल से सिंगल हो गया, एक लॉन्ग पेयर. एग्रीड? गुड. जुग तुम आ जाओ. सेकंड बना लिया. जुग ये Yes. स्ट्रक्चर बना लिया. अब देख Yes, sir. ये है. तो अगर मैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन से, राइट, ये देखिए जो ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है. Yes, sir. ऑक्सीजन गुस्से में है. भाई तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो. मैं तो नहीं मानता. मैं नहीं खेलता. जैसे तो बचपन में क्रिकेट नहीं खेलता था, रोता होता था. मुझे पता दूर दूर तक है ना कि जब आउट हो जाए तो मानता नहीं था. तो अनुवंश ये ऑक्सीजन रजा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से उखाड़ के ले गया. समझा? तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव. Positive. Positive. और न्यूट्रल आ गया. डिड यू अंडरस्टैंड थर्ड चार्ज, थर्ड स्ट्रक्चर बेटा? Yes, sir. नहीं. अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ. देखो ऊपर वाले का तो मैंने हाथ ही लगाया. अब देख बेटे यहाँ पे ऐसा था ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ क्या था? पॉजिटिव था. इस Positive. इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दे. तो ऐसा करने से अनुवंश दी ग्रेट तुम्हारे पास इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? इसके ऊपर. Oxygen. इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया बेटे? थर्ड यही तो है. Yes, sir. ठीक है ना? अब तुम कदम आगे आ जाओ.
कदम ये न्यूट्रल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना? Yes, sir. ये सबसे ज्यादा। देखो पाई बॉन्ड पे हिसाब काम नहीं कर सकता, इसमें भी एक पाई, इसमें भी एक पाई, इसमें अदर कोई पाई नहीं है ना? तो ये बात पक्की है, एक और दो ज्यादा स्टेबल होंगे, तीन सबसे कम स्टेबल होगा शायद, है ना? अभी चल Yes, देखते sir. हैं। तो अब एक चीज, तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? First. फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। अब दूसरे नंबर पे आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहाँ पे क्लोजर है? थर्ड में से। Third. Third. सुपर सेकंड। Third. और फिर किसका नंबर लगेगा? सेकंड। Second. डू सिर्फ यू पाई अंडरस्टैंड? वो बेटे सिर्फ अलग पाई अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन चल रही है ना, अभी रुक जा, वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन चल रही है ना, कि तुझे अभी ये पॉइंट सिखा रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, बट डेफिनेटली अनुवंश, मैंने इस वक्त तुझे 4 सेपरेशन कहा है, अगर वैसे देखेगा तो दिस इज गोइंग टू बी ज्यादा स्टेबल ही है, राइट? और काम करके देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर बेटे, अभी जो पॉइंट तेरे को सिखा रहा हूँ दोस्त, ठीक है नी? यस सर। तो इधर आजा, तीसरा पॉइंट क्या सिखाया? 4 Chart सेपरेशन separation. Separation. स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। Decreases stability. डिक्रीजेस, और अगर दो 4 सेपरेशन को देखना हो, क्लोजर 4 Closer. सेपरेशन, More मोर stable. स्टेबल, मोस्ट फर्दर 4 सेपरेशन, Third Less separation. stable. लेस स्टेबल। एग्रीड है ना? Yes, sir. चलो जी, आगे एक सेकंड बेटे, इसको जरा आगे ले जाऊं, क्योंकि ये मुझे बाद में लेके जाऊंगा, अभी यहाँ पे आ गया हूं। तो देयर आर सर्टेन रीजंस, स्ट्रक्चर्स। अब एक ही नेगेटिव है, in which negative charge is more, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे है, वो मोर स्टेबल है। कुदरती तौर पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छा बर्दाश्त कर सकता है। तो एग्जांपल 1 में ए स्ट्रक्चर देखो, अब मूव नेगेटिव चार्ज टुवर्ड दिस, हो गया। यस तो सर। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। स्ट्रक्चर बी देखो, बाकी सब चीज अलग है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? ऑक्सीजन पे, सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। More डू यू stable. अंडरस्टैंड? सेकंड को देखो, इन सबके नोट्स बनाने हैं अपने हाथ से, ठीक? अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, मूव नेगेटिव चार्ज टुवर्ड दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसको सी बोल देते हैं। सी क्यों बोलते हैं? जब आगे 2 लगा ही दिया तो छोड़ो, पर ए बी पी रहने देते हैं। अब इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो विच इज गोइंग टू बी डियर मोर स्टेबल। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। Lastly, but very, very important, extremely important, the equivalent structures are very, very stable. मतलब ये टॉप पे बैठते हैं। अगर कभी तुम्हें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल गए, उससे ज्यादा कोई स्टेबल हो ही नहीं सकता। रेजोनेंस इक्वालिटी लाती है और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाती है। वापस आऊंगा इस पे, पहले खुद बनाते हैं, अभी वापस आऊंगा। सो एक एक करके, ठीक, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वहीं पे वापस आएंगे। आर सी ओ एच, आई होप यू एग्रीड। हम सिर्फ वहां पे लॉन पेयर दिखाते हैं जहां पे कोई चेंज होना है, तो इसकी वजह से ये मुझे दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ वहां दिखाऊंगा जहां पे कोई चेंज करना है, उससे क्लैरिटी रहती है। अब बेटे याद करो पिछला लेक्चर, मूव लॉन पेयर टुवर्ड दिस, तो भाई यस सर। 4 सेपरेशन नजर आनी शुरू हो गई। यस सर। ना बेटा, एग्रीड। अब भाई रेजोनेंस है,
अगर ये प्रोटॉन लूज करता तो R क्या बनाता दोस्तों? O नेगेटिव नेगेटिव प्लस H प्लस। अब आपको इस स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस नजर आनी शुरू होगी। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या सिखाया था? दिस ऊपर क्या आ गया? O नेगेटिव। नेगेटिव नीचे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो ये दोनों स्ट्रक्चर, क्या ये 100% इक्वल नहीं है? Yes, sir. दिस Yes. इज नोन एज व्हाट अरोड़ा? Equivalent. इक्विवेलेंट ध्यान से देखो ये कहां से इक्विवेलेंट है? बिल्कुल भी नहीं। डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन OH वाले के साथ। सो दीज आर बच्चों, इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट इक्विवेलेंट वाले को आप समझ गए। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, डू यू अंडरस्टैंड? इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में क्या फर्क होगा? एक सेकंड, कोई कारण है तो ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं गुड़िया, NH2 positive. This is going to be NH2. This is going to be NH2. I hope you understand. यहाँ पे लॉन पे नजर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, तो रेजोनेंस तो आने की है ना जी? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं, जो भैया यहाँ की Double. तरफ, Positive. Positive. वेरी गुड, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, Negative. NH2. नेगेटिव क्यों Neutral. मात्रा? न्यूट्रल होएगा बेटिया, Neutral. है ना? Yes, sir. और बहन इसको तो मैंने हाथ लगाया है। Yes. तो देखो भाई, ये कह रहा है मैंने क्या कसूर किया? तुम तीन भाइयों ने अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर लिया, दो भाइयों ने, ये कह रहा मैं भी करूंगा, तो मेरे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दो। तो कुदरत के दिए तू पीछे क्यों बैठ, तू भी आ जा, ठीक है ना? है तो मॉलिक्यूल मतलब भाईचारा ही है ना, ये फैमिली तो इकट्ठी है। अब इधर क्या आ जाएगा? Positive. इधर क्या आ गया? NH2। NH2. Neutral. इतना इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर Equivalent. देख, 3 equivalent, sir. इक्विवेलेंट दिस विल बी वेरी मच स्टेबलाइज्ड। इतना इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देख रहे हो? दो, 2. दिस Two. स्टेबलाइज्ड। और ये क्या देख रहे हो? नॉन इक्विवेलेंट। D. राइट हैंड साइड वाला इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। समझ आया? नॉन Yes, sir. इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। अब अनुवंश तुम आ जाओ आगे, Yes, sir. ठीक है अनुवंश? अनुवंश जितना करेगा बेटे उतना कम है, जितना करेगा उतना कम है। अनुवंश एक चीज देख, ए और बी, एवरीबॉडी टोटल मेरे ऊपर फोकस्ड हो। अगर तुम्हें अपने कमरे में कुछ और चीज नजर आ रही है या कोई और, तो तुम ये पॉइंट लूज करोगे। अगर समझ आ गई फिर तुम्हें सच में ईमानदारी से बोल रहा हूँ मेरी जरूरत नहीं है, जो कि मेरा टारगेट है ना? तो लेट इट बी बेटे, अल्कोहल लिख देते हैं। आर का मतलब समझते हो ना दोस्तों? जब मैं किसी एक से बात करता हूं तो वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग विद मी, इन्वॉल्व विद मी। तो ये आ गया तुली। तुली, अब कोई बंदा आपसे पूछता है अनुवंश कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से कौन ज्यादा स्टेबल है? भाई हमने तो ये देखना जो ज्यादा प्रोटॉन देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना? तो बेटे Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOH में अभी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? Non-equivalent. नॉन Non-equivalent. पूरा बोलो, पूरा बोलो। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Resonating structure. नॉन इक्विवेलेंट बोल दिए, तुमने कह दिया नॉन इक्विवेलेंट इंडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना? ज्यादा बोलो। ओए तुली, अनुवंश यहाँ पे these forms equivalent structure, तो बेटा राइट वाला इज मोर स्टेबल। Yes, मोर sir. स्टेबल क्या सिखाया गया शुरू से? More More formed. मोर फॉर्म्ड
अब नीचे फोकस मारते हैं, दिस इज न्यूट्रल, है ना, मानते हो? Yes, रेजोनेंस sir. तो इंडक्टिव की वजह से प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज बच्चों Increase. Decrease. Increase. तो ये वाला क्या होएगा, लेस स्टेबल, Less ये वाला stable. more stable। More stable. अगर मैं आपको 100 दूं इसके, 100 मॉलिक्यूल दूं इसके, तो इसके 80 टूटेंगे, इसके 5 टूटेंगे, जितने इसके 80 टूटेंगे 80 प्रोटॉन मिलेंगे, इसके 5 जाएंगे, इसके 5 प्रोटॉन मिलेंगे, which is going to be more acidic out of these two। Carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. राइट, एक बात क्लियर रखो, हम आपको रेजोनेंस टाइम पास करने के लिए नहीं करवा रहे हैं कि यू शुड नो द रेजोनेंस, आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, नो, हम आपको रेजोनेंस सिखा रहे हैं कि यू जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट एंड यूज इट फॉर योर बेनिफिट। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार दोबारा रिपीट, स्ट्रक्चर 1 में से इसको 1 बोल दिया रिपीट, और इसको 2 बोल दिया, विच इज मोर स्टेबल? Second structure. सेकंड से। और विच इज लेस स्टेबल? Carboxylic acid. Why second is more stable? Due to equivalent resonance structures. Very good, good, शाबाश, बहुत अच्छा। तो आदित्य, ईशान, अगर बात कर सकते हो तो दिस इज गोइंग टू बी बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में नहीं है, सच में जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आइडिया क्या है, 100% सिलेबस करोगे तो 90% याद रहेगा, 80% करोगे तो 60% याद रहेगा, 120% करोगे तो 100 तो याद रहेगा ही, है ना, मैं समझता ना। तो थोड़ा सा ज्यादा, Yes. इसको ग्वानिडिन बोलते हैं यार, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेस। बेस क्या करते हैं? Accepts Hydrogen. proton. H plus ions. इसको ग्वानिडिन बोलते हैं ईशान। तो इसने प्रोटॉन खा लिया, ऊपर बन गया NH2 पॉजिटिव, किसी पे भी डाल दो बात तो वही है, पर इसने क्या बना दिया, NH2 पॉजिटिव। ये समझ आ गया? अब बेटे आप लोगों को भी मैंने इसीलिए करवाया था, टाइम पास थोड़ा किया था। दिस फॉर्म्स 3 equivalent resonating structure, so this will be very stable। तो क्या ये प्रोटॉन खाएगा? हाँ, प्रोटॉन खाएगा। ये प्रोटॉन खाएगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में रहेगा? फॉरवर्ड में रहेगा। और जो ज्यादा प्रोटॉन खाएगा वो बच्चे क्या होगा, ज्यादा मोर स्टेबल होगा। Basic. I'm not teaching you the resonance, दिमाग से निकाल दो। I'm teaching you concepts, these are the concepts। अब कल को तुम्हें किसी ने पूछा, एक मिनट, एक सेकंड, तो इसको अमाइडीन बोलते हैं, राइट? बिल्कुल भी मत याद करो, जो मूर्ख होंगे वो याद करेंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे वो समझेंगे, ओके? इसको आर को भी चेंज कर देता हूँ, लो जी, खुश रहो, मॉलिक्यूल ले आया हूं, ठीक है? तो ईशान, इसको मिथेनामाइन बोलते हैं। अरे ये सारे के सारे क्या है, बेस है, प्रोटॉन डाल दो। अब जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद शांति रखी, ज्यादा स्टेबल हुआ, दिस इज गोइंग टू बी मोर फॉर्म, और whatever is going to be more formed will be more stable, more basic होगा। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव दे दे, यहाँ पे NH2 आ गया बच्चे, यहाँ पे क्या आ गया, NH2 आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इसमें प्लस I इफेक्ट, अरे याद करो यार, Yes, sir. इन दोनों में कौन सा इफेक्ट? Resonance. Resonance. अब इसके 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसके 3 equivalent structure, therefore which is going to be more
बेसिक, द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसका नाम क्या है? अमाइडीन। बिल्कुल भी मत याद करना, मैं अभी भी कर रहा हूँ। जिस दिन तुमने बस Guan. ईमानदारी से काम किया उस दिन मां सरस्वती हाँ तुम्हारे आसपास आके बैठ जाएंगी और तुम्हें कहेंगी बेटा तू चिंता मत कर, तूने बस पढ़ा हुआ ना, तू गलत भी आंसर कर मैं तेरे को ले आऊंगी। पर जिसने यहाँ पे काम चोरी की उसने सही भी आंसर किया, घर आके देखेगा गलत हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, है ना? Yes, sir. This is to be more stable. This is going to be, Least stable. you're right, less stable. So the more stable the product, no, equilibrium का fundamental याद है ना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट राइट और लेफ्ट साइड में जो ज्यादा स्टेबल है इक्विलिब्रियम उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात थी, सिंपल बात हम यहाँ कर रहे हैं। वापस आओ, हमने आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट सिखाए मैं तो भूल गया। चौथा, मोर More the equal, the more the इलेक्ट्रोनेगेटिव stability. More equivalence. More is the stability. अब्सॉर्ब्स और More बर्दाश्त करता है, मोर negative charge. Negative charge. that is negative charge and more electronegative, more stable. पांचवा, Equivalent equivalent, structures. Resonating. very very Stable. बस अब इसमें से थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं। बोर्ड के ऊपर कोई लिस्ट है भाई, ये क्या लिस्ट है? सोच के बताओ, करवाया गया? सर Electric effect. हीटिंग और विड्रॉइंग Withdrawing. माइनस प्लस इफेक्ट इसकी वजह से बेटे इंडक्टिव इफेक्ट। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अभी देखिए दर बदलेंगे। हैलोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Drawing. OH क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। अरे ये मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं तो अभी वापस आऊंगा वहां पे, ठीक है जी, अभी वापस आऊंगा। डू यू रिमेम्बर फिनॉल होमवर्क भी दिया था तुम्हें ना? Yes, sir. ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेगा बच्चों? नीचे। यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Positive. यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? Negative. Negative. यहाँ पे क्या आएगा? ऐसा। Double. अरोड़ा So, समझ गया? हाँ हाँ sir, बोल double लो। bond. Sir, OH और हाँ 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 अनुज गुड बेटे। तो इधर आएगा बेटे अरोड़ा मैडम, यहाँ पे नेगेटिव, Negative. इधर गुड़िया द positive. Positive. अरोड़ा इधर और इधर इधर Negative. इधर हाथ नहीं लगाया, Positive. वापस Positive. करो लॉन्ग पेयर। ये कितने रेजोनेटिंग बन गए? 5। 5. 5. रेजोनेंस का साइन क्या है? डबल हेडेड है। समझा? अमोनी अग्रिम आदित्य। अब देखो बेटे खास बात पकड़ो, एनी ग्रुप which lone pair will show plus M effect। अरे देखो ना, अगर यहाँ पे क्लोरो होगा तो भी lone pair नीचे आएगा, अगर यहाँ पे ब्रोमो होगा तो भी नीचे आएगा, अगर OH होगा तो भी नीचे आएगा, OR होगा तो भी नीचे आएगा, अगर NH2 हुआ तो भी नीचे आएगा। चुप देखता रहे क्या मजेदार चीज चल रही है। NRO तो भी आएगा, NHCO R होगा तो भी आएगा, अगर OCOR होगा तब भी आएगा। डू यू अंडरस्टैंड?
Yes, my dear friends. Yes, sir. Do you दूसरी चीज प्लस m में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग स्पेशली at ortho para positions only increases. Right? What is this position? Ortho. ऑर्थो Para. ये ऑब्जर्वेशन शुरू करो। रेजोनेंस जनाब आते ही ऑर्थो पैरा पे है, रेजोनेंस कहीं और आती नहीं बेंजीन रिंग पे। ठीक है जी, ये आप लोग बना के देख लीजिएगा। क्यों Excuse बनाए? me, sir. हाँ माता बोल। तो मेरे सर एक्चुअली सर इसमें स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है सर, तो मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लूं? हाँ हाँ कर ले, पर इसको लॉग मैं कर दूंगा इसको लॉग आउट। हाँ आप कर लो, ठीक है यस सर। मैं कर दूंगा, मेरे पास में मेरी इंडिकेशन आ जाएगी, मैं कर दूंगा। तो बेटा बनाने की जरूरत नहीं है, पर सुनो जरूरी नहीं है ऐसा हो। अरे ये भी तो रेजोनेंस है, ये भी तो प्लस एम में आएगा। Yes, sir. हाँ ये भी तो तुल्य प्लस एम में ही आएगा। देखो लॉन पेयर है ना। अब दोबारा देखो, प्लस एम का क्या मतलब होता है? ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आपको होमवर्क दिया गया था है ना जी, तुम लोगों ने बनाना था, मेरे को तो आता नहीं था, तो ये तुम लोगों को होमवर्क दिया था। चल भी अनुमेश आगे आ जा। Yes, sir. अनुमेश कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं बेटे, जहां पे नहीं समझ आए रोक लेना और जल्दी मत करना, आराम से चल है ना, कोई गाड़ी थोड़ा पकड़नी है, समझने का। तो पहला बना लो ऐसा, दूसरे में कभी ऐसा ना बना। अब ये कौन सा ग्रुप है यार? यहाँ पे लॉन पेयर तो नहीं है ना? नो लॉन पेयर ऑन एटम, हाँ directly Attached. bonded, you're right, to the benzene ring. At the same time, this group is electron withdrawing group. तो बेटे ये वाज्य मार के बुलाएगा, तू ऊपर आ। तो अनुमान यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। Positive. यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। Double bond. आगे आगे दे मारा, इसके ऊपर चार्ज Negative. क्या आ गया? समझा? Yes, sir. अरोड़ा तुम आ जाओ, बात करते हैं बेटिया। Yes. अरोड़ा मूव डबल बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज बेटिया। Positive charge. Yes. तो यहाँ पे क्या आ गया? Positive. Positive. इसको हाथ नहीं लगाया। Negative. Negative. तुम आ जाओ गायकी, तुम आ जाओ, अब तक सेटल हो गया होगा गायकी। यस सर। इसको इधर ऐसा पॉजिटिव ऐसा, और इधर बच्चा पार्टी Negative. नेगेटिव। उधार वापस करो। ठीक है जी, ले आया मैं वापस। इसको इधर उतारो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको इधर उतारो, बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड। कितने स्ट्रक्चर माता? 5. 5। बेंजीन पे बनने ही 5 है बेटे, बेंजीन पे बनने ही क्या है? 5 स्ट्रक्चर। इसको साफ करना है। अब ऊपर ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज है? Negative. माइनस नेगेटिव। की वजह से इसको क्या बोला जाएगा? माइनस एम। वेरी गुड, माइनस चार्ज। देयरफॉर दोबारा बोल। माइनस Minus M एम। Minus. Minus R. R. दोनों ही है ना? Effect. माइनस। जो लोग मेरे साथ ऐसे बात करते हैं, सच में अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको क्लास के बाद रिवीजन में कम टाइम लगाना पड़ता है ना? अब देखो भी, द माइनस एम में ईडी का मतलब क्या होता है? चुक इलेक्ट्रॉन Electron डेंसिटी density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑन रिंग
डिक्रीज यार, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ नहीं जा रही, Yes, sir. स्पेशली एट Ortho and meta position. Ortho and Ortho para and para position. para position. हाँ मेटा नहीं बोलना, ईशान इसने गलत बोला ना, ऑर्थो एंड पैरा। Para. इसको होमवर्क दे दूं, दिया ही था पहले। Yes, sir. इसका मतलब प्लस एम माइनस एम, ऑल ग्रुप्स हैविंग लॉन पेयर। ईशान समझा बेटे? जी, where G can be ईशान the OH NH2 जैसे है, NH2 and इधर all other electron withdrawing groups as taught in the as discussed। Inductive effect. Very good, दोबारा बोले यार, The inductive effect. क्योंकि बड़े मजेदार चीज में से जा रहा है। प्लस टू के बच्चों को ये ज्यादातर लोग जो ध्यान से नहीं सुनते ना, बस लोग आगे चल जाते हैं, पता ही नहीं होता। तो चुग इसका मतलब, अब ये G डैश लगा देता हूँ मुझे, ये G डैश का मतलब क्या होगा चुग? CH COH NO2, देख COR, समझा? लो राइट, एल्डिहाइड एक्सेप्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा Ortho increases. Increase. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Electron डेंसिटी density on ortho para decreases. एग्रीड। इसका मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ऐसा बोलूं, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड, पूरा करो, Only only at on the ortho. only and at ortho para position in Benji। in benzene. Benzene. तो बहुत इज्जत से बोला करो बेंजीन को हाईली कार्सिन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? क्या सिखाया मैंने? अगर प्लस एम होएगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कौन से ग्रुप? प्लस एम वाले। अगर माइनस एम होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वापस आ गए, यहीं से शुरू किया था ड्रामा, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एनी डाउट बच्चों? नो। अरे रेजोनेंस पे आ गया हूं, पिछला पेज इंडक्टिव था, अब का पेज रेजोनेंस पे है। रेजोनेंस में दो प्रकार के ग्रुप हैं अग्रिम सिंह, प्लस एम और प्लस आर, माइनस एम और माइनस आर। अन्य अरोड़ा गायकी गरिमा, कौन से यार प्लस एम वाले? Lone pair. लॉन पेयर। ये अभी बात करूंगा, ये 10 अभी के लिए ऑड मैन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करूंगा इसको, ये कैसे प्लस में, तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है ना। बाकी सारे ग्रुप कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, पढ़ के बता दो यार। withdrawing group. Withdrawing. Withdrawing. दिस इज फ्रॉम द रेजोनेंस। Resonance. Resonance. समझो यार, ओए अंकल ध्यान से देख, NH2 क्या है? और अंकल ध्यान से देख, Lone pair or resonance. such groups are electron withdrawing, Electron withdrawing. Group. Electron releasing. do you understand? नई चीजें पढ़ते जा रहे हो? गए की जरा पे नंबर 67 याद रखना। अभी वापस आता हूँ बुढ़िया, है ना? Yes, sir. अभी वापस आता हूँ बहना। ये तो मैं भूलेगा तो नहीं ना कभी, No, sir. No, sir. है ना? जैसे कभी अपने माँ बाप का नाम, है ना, अपना सरनेम, अपना देश, अपना आसपास नहीं भूलना, बट हाँ, बट उसके लिए कभी बसें मत तोड़ना जाके, है ना? तो गए की कितना पेज तूने बोला था? 67. 67. अरे गए की
आराम से बैठ जाओ, जल्दी नहीं करने की, ठीक है जी। जल्दी की तो गड़बड़ होगी, ठीक है जी। 10 बार करूंगा, समझा के जाऊंगा, चिंता मत कर, है ना। यस सर। कहना तीनों बेंजोइक एसिड, राइट। यस सर। पूछेगा विच इज मोर एसिडिक, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ उतना ही प्रोटॉन पैदा होंगे, उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। यस सर। अनुमान जब मैं ऐसे दिखाता हूँ ना बेटे, इसका मतलब होता है ऑर्थोमेटा पैरा कहीं पे भी हो सकता है ये ग्रुप, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ गया। तो गए कि सब में CO नेगेटिव तेरे को समझ आ गया। ये यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, नेगेटिव ज्यादा करेगा ना मैंने। यस। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। डिक्रीज कम करेगा। तो बेटा देखना गलती करो तो संभाल लेना, दिस विल तो बी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कौन सी है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों की तरफ से। अब तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगी ना तेरे, रेजोनेंस के एंगल से देख ले, इंडक्शन की तरफ से देख ले, दोनों की तरफ से बेटा, ठीक है जी। सर ये इसमें से रिंग से अट्रैक्ट करेगी अपना। हाँ, लाइक NO2 कह ले, रिंग पे ऑर्थोमेटा पैरा पे, ये ले COH नाइट्रो, COH कहीं पे भी लगा हुआ है, उसका बेसिक काम तो इलेक्ट्रॉन खींचने का है ना, यस सर। समझ गया ना, कहीं पे भी लगा हुआ बेटे। अब अनुमान समझ गया, यस सर। राइट, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और अनुवंश, इसके बारे में तो ये तो देख अनुवंश, दीज आर फुल टाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये देख विभीषणा, दिस इज OH, जो तूने बहुत अच्छी चीज पूछी और बड़ी अच्छे तो जवाब देख रहा। अब तुम्हारी इंटेलिजेंस है कि तुम इसको डाइजेस्ट करते हो कि नहीं करते हो। चुग ये ग्रुप देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। चुग चुग OH जो है, एक मिनट बेटे, एक सेकंड बताऊंगा, फिर तेरे पूछूंगा, रिपीट करवाऊंगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग U2 इंडक्टिव U2 minus I effect. माइनस आई इफेक्ट। And Chuk sir, this is electron releasing group. U2 प्लस M इफेक्ट। Plus. अब चुग ध्यान से सुन बेटे, एवरीबॉडी। अरोड़ा इसने बड़ी मजेदार चीज पूछी है, गलती से पूछ गई, इसको भी नहीं पता इसने क्या पूछी है, पर बड़ी जबरदस्त चीज पूछी है। अनुवंश ध्यान से सुन, अब ये कहाँ प्रेजेंट है अनुवंश, मेटा पे। मेटा मैं अपनी मातृभाषा यूज कर रहा हूँ, मेटा पे रेजोनेंस तो आपकी नहीं है ना। यस सर। यार तेरे को सिखाया था, मेटा पे रेजोनेंस आती नहीं, ऑर्थो पैरा पे आती है। और तो भैया इस वक्त इंडक्टिव ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू भैया माइनस आई इफेक्ट। समझ आ गया दोस्त। यस सर। आम और बहुत खास में फर्क, अरोड़ा समझा है? अरोड़ा तुम्हारे से सुनना चाह रहा हूं। अरोड़ा, दिस OH is a full time electron withdrawing NO2. अब बेटे देख अरोड़ा, दिस COH, COH तो है, दिस OH is, मेरी लैंग्वेज है ये, किताबी नहीं है, पार्ट टाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझा। रेजोनेंस की वजह से रिलीजिंग बन जाता है और इंडक्टिव की वजह से विड्रॉइंग। Welcome into organic chemistry. That is why it is considered as physical chemistry सिर्फ लॉजिक चलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक और नॉलेज दोनों चलता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नॉलेज चलती है। That's the organic chemistry. चलो भाई अब वापस आ जाओ।
तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इट में भी एनीवे, तब तुम इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले को देखो तो ये इसको मोर नेगेटिव नहीं बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन Yes, sir. विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इसको लीस्ट लीस्ट नेगेटिव। नेगेटिव Least negative. अच्छा पार्टी, जरा पेन का रंग थोड़ा सा चेंज करता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट Least स्टेबल stable. Lesser stable. this is going to be Most stable. and this is going to become in between. Do you understand? और अभी भी अगर 100% ऑर्गेनिक है, इसे को तुम 2-4% से ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहे हो, क्या हम आगे चलें बच्चों? तो इसमें एक क्वेश्चन सर हमें ये था कि इस रिएक्शन में सबसे स्टेबल प्रोडक्ट किसका होगा? अभी तो यार जितना बोलो ना बेटे, तो टू बी ऑनेस्ट विद यू उतना ही कम है। तो अभी तो ऑर्थो इफेक्ट ही नहीं पता तुम्हें, है ना? तो अपने आप आते चले जाएंगे अनुवंश। जस्ट बी ऑनेस्ट द वे यू आर। तुम बहुत अच्छा काम करते हो, जितना सिखाया बस उतना चलता रहे बेटे, क्योंकि अगर मैं समय से पहले तेरे को सिखाने की कोशिश करूंगा तो तुम रट्टा लगा जाओगे। दैट इज मेरी मतलब बिल्कुल भी अवॉइड करने वाला हूँ। ठीक है राजा? Yes, sir. देखता अपने आप आती रहेंगी, बस रट्टा मत मान। जहां पे रट्टा होगा मैं तेरे को खुद बता दूंगा कि रट्टा है। अभी तक रट्टे वाली कोई चीज नहीं आई है, वो भी लगवाऊंगा। ठीक है जी? अभी समझने वाली चीज है, बस ईमानदारी से काम कर। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, यू विल रीड इट डक्टिव और ठीक है, ये तुम करोगे। तो आज कुछ ना स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी वजह से ना आगे नहीं जाऊंगा। इतना करो और संडे को सुबह 10 बजे क्लास रखेंगे। ठीक है बेटे? तो जो लोग अटेंड कर सकें गुड इनफ होगा, जो नहीं कर पाए उनको हम और रिकॉर्डिंग देख लें, तो फिर आगे चलते हैं। आज फ्राइडे है ना, तो आज इतना ही अपने स्कूल का काम कर लो। कई बच्चों का मेरे को फोन भी आया है, तो वो स्कूल की तैयारी में है, तो मैंने कहा बस नहीं करूंगा। योर होमवर्क इज यू गो टू दैट। हमारा पास एक थोड़ा सा जीओसी का टॉपिक पड़ा है। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, मेरे हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 45 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कवर कर लूंगा। बट उसके बाद I will be starting with the reaction chemistry. So I will try to start it fresh. So that is the only concept which is left here. Right? और स्कूल का एग्जाम एक बार आपसे संडे को बात करके मैंने नॉमेनक्लेचर का एक टेस्ट और रखना है, फिर जीओसी के 3-4 टेस्ट लूंगा। तब तक आप आगे चलते जाएंगे। और सुनो, जीओसी के टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फेल हो जाओगे, ये कहना चाह रहा हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट 80% 90%। अगर तुम बहुत मेहनत करोगे तो तुम 70% टच करोगे। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा वो तो 15-20-30 पे ही शायद रहने वाले हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट थोड़े से नंबर देने वाला, बट अदरवाइज जीओसी समय लगता है, काफी समय लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा है। फॉर एग्जाम्पल अनुवंश ने पूछा, अभी तो इसको रेजोनेंस की प्लेनैरिटी आएगी, थोड़ा सा और चीजें आने वाली है। So we stop here, my dear friends. Your homework is please go through these effects and we will continue with this बच्चों। ठीक है? बस एक हाइपर कॉन्जुगेशन रह गया। Good luck. Bye. So, Take care. हाँ बोलो। so जो सर चेयर एंड बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन वाली सर वो जो वीडियो थी सर, फिर उसके हाँ। नोट्स बनाने थे? ना, ऐसे तो मैं तेरे को 3-4 और भेज दूंगा, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने पड़े। बट हाँ, आराम से उसको 3-4 बार देखना जरूर है ना, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में ही समझ आता है ना, नोट्स नहीं बनाने। ये सर। नहीं पे सेव कर सकता है उसको यूट्यूब को, मतलब तेरे को अगर अगले साल तेरे को 2022 कर सकता है, किसी जगह पे रख लो। ये सर तो मैं डाउनलोड। भी कहीं पे उसको नोट करके रख दो, है ना? तो मैं भी भेजूंगा, चिंता मत। 2022 में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने मुझे, बिल्कुल नहीं बनाने। ओके सर। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, वो तो चेयर और बोर्ड भी नहीं बात नहीं करता। तो चेयर और Yes, बोर्ड sir. भी नहीं, आई विल डू इट जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी। और ये जो आपकी जीओसी चल रही है ना अनुवंश,
ये +2 में मतलब बेसिकली क्या चीज है, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाएंगे ये टॉपिक और पक्का होता चला जाएगा। जैसे याद कर मोल कॉन्सेप्ट, एज यू मूव फर्दर ये और एक अच्छा होता चला जाता है बेटा। चलो बच्चों, good। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वो एनसीईआरटी टच कर ले जो पहले वाला नॉमेनक्लेचर वगैरह था? नहीं, उतना कर ले जितना मैंने करवा दिया है, और बाकी तेरे को भी कुछ समझ नहीं आएगा। मजाक नहीं ठीक कर है रहा। सर। यस तो सर, ठीक है। तो खुजली सी होनी शुरू हो जाएगी कि क्या करा रहे हो सर जी। वो हमारे से बहुत नीचे काम करता है, बहुत नीचे काम करता है। मतलब आपको करना होगा बट लेकिन फिनिश में सर। यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन करा लेंदे पहले, एरोमेटिसिटी कराने बाद उस तो बात कर ले, ठीक है सर। ठीक है? ठीक एरोमेटिसिटी है कर। सर। चलो, गुड लक बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।